میں سلمان اکرم راجہ آپ سے مخاطب ہوں۔ 8 فروری 2024 کو پاکستان میں عام انتخابات منعقد ہوئے۔ 8 فروری کا دن میری زندگی میں ایک یادگار دن کی حیثیت سے ہمیشہ مجھے یاد رہے گا۔ میں نے اس دن لاہور کے حلقہ 128 NA128 سے الیکشن لڑا پی ٹی آئی کی جانب سے۔ میں پی ٹی آئی کا امیدوار تھا، تاہم مجھے آزاد امیدوار قرار دیا گیا۔ میں ہائی کورٹ گیا، سپریم کورٹ تک گیا، ہماری سنوائی نہ ہوئی اور ایک غیر قانونی فیصلے کے تحت ہمیں آزاد امیدوار قرار دیا گیا۔ ایک فیصلے کے تحت، سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت ہم سے ہمارا انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا۔ تو صورت یہ تھی، پچھلے سال 8 فروری 2024 کو حلقہ NA128 میں پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی کے امیدوار کے طور پہ میں میدان میں تھا۔ اسی حلقے میں 5 امیدوار ایسے تھے جو صوبائی حلقوں پہ الیکشن لڑ رہے تھے اور پی ٹی آئی کے امیدوار تھے۔ لہٰذا ہمارے حلقے میں NA128 میں الیکشن سمبلز کی بھرمار تھی۔ میرا الیکشن سمبل ریکٹ یا چھکا تھا، کسی اور کا سمبل برش تھا، کسی اور کا سمبل حرف کے تھا، اور اس طرح۔ اور اس الیکشن میں جب ہم گئے تو ہمارا یہ خیال تھا کہ ہماری جو عوام ہے ان میں سے بہت بڑی تعداد ظاہر ہے کہ ناخواندہ ہے، وہ شاید دشواری محسوس کریں یہ جاننے میں کہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ کون ہے، امیدوار کون ہے۔ لیکن جب یہ الیکشن ہوا 8 فروری کو اور ہم پولنگ سٹیشنز پر گئے، میرے حلقے میں 436 پولنگ سٹیشن تھے، تو میں حیران رہ گیا یہ دیکھ کر کہ عورتوں، مردوں، بچوں، بوڑھوں، جوانوں کی ایک بہت ہی بڑی تعداد والہانہ انداز میں باہر نکلی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں پر، جو ناخواندہ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، انہوں نے اپنے ہاتھوں پر الیکشن سمبل جو تھے وہ لکھے ہوئے تھے، بنائے ہوئے تھے، اپنے چہروں پر الیکشن سمبل بنائے ہوئے تھے۔ اور ایک بہت بڑی تعداد میں اس دن ووٹ پڑا، پی ٹی آئی کو ووٹ پڑا، عمران خان کو ووٹ پڑا۔ اور ہم سارا دن یہ سوچتے رہے کہ آج پاکستان میں یہ جمہوریت کی فتح کا دن ہے۔ جب رزلٹ شام کو آنا شروع ہوئے، میں اپنے حلقے کے ریٹرننگ افسر کے دفتر میں جا کے بیٹھ گیا۔ 20 رزلٹ آئے حلقے کے تمام علاقوں سے، ہر پولنگ سٹیشن پہ ہم جیتے ہوئے تھے۔ اور یہ رزلٹ آتے رہے جب اچانک یہ ہوا کہ ایک حملہ کیا گیا ریٹرننگ افسر کے دفتر پہ۔ اور یہ حملہ بالکل اب ظاہر ہے ہمیں کہ خود ساختہ نوعیت کا حملہ تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ریٹرننگ افسر کے دفتر سے ہم سب کو نکال دیا جائے۔ وہاں صرف میں امیدوار کے طور پہ اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ہمیں گریبانوں سے گھسیٹ کر باہر نکالا گیا۔ جن پولیس والوں نے یہ کیا، ان کے نام، ان کی شکلیں میں پوری عمر نہیں بھولوں گا۔ آج ان کو اعلیٰ عہدے دے دیے گئے ہیں، لیکن وقت بدلے گا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ ہمارے پاس جو پولنگ سٹیشن سے ہمارے پولنگ ایجنٹ رزلٹ لے کر آئے، ان کے مطابق مجھے 1,60,000 ووٹ اس حلقے سے ملے تھے، یعنی 128 لاہور۔ اور ہر پولنگ سٹیشن پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی تھی۔ اور یہ صورتحال بالکل واضح تھی۔ دوسری جانب کے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ تھے ہر پولنگ سٹیشن پہ، جو وہ لگاتے تھے اپنے تمبو اور کرسیاں، وہ ویران تھے۔ اگلے دن جب رزلٹ آتا ہے، اس دن رات جب مجھے نکالا گیا، ہم فوراً بھاگے۔ صبح ہم ہائی کورٹ گئے۔ ہائی کورٹ کو ہم نے بتایا کہ رات یہ ہوا ہے، ہمیں نکال دیا گیا ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جو کنسالیڈیشن ہے، تمام پولنگ سٹیشن سے جو رزلٹ آتے ہیں ان کو مرتب کرتے وقت امیدوار کا ہونا ضروری ہے۔ ہمیں نکال دیا گیا ہے ریٹرننگ افسر کے دفتر سے، اور ہمیں یہ شبہ ہے، ہمیں یہ خدشہ ہے کہ وہاں رزلٹ کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ہائی کورٹ نے حکم دیا ریٹرننگ افسر کو کہ پیش ہو فوراً اسی دن 3 بجے 9 فروری کو۔ ریٹرننگ افسر نہیں آیا، حکم عدولی کی ہائی کورٹ کے حکم کی، اور ایک رزلٹ کا اعلان کر دیا گیا 1 بجے، جس میں میرا ووٹ تو 1,60,000 ہی رکھا گیا، لیکن دوسرا ووٹ جو مد مقابل تھا اس کا ووٹ بڑھا کر 1,73,000 کر دیا گیا، جو لاہور شہر میں سب سے بڑا ووٹ بن گیا۔ اب دلچسپ صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ میرے حلقے کے جو 436 پولنگ سٹیشن ہیں، ان کا رزلٹ جو الیکشن کمیشن نے اس تمام تبدیلی کے بعد شائع کیا اپنی ویب سائٹ پہ، اس کو اگر پڑھیں تو جو صورت سامنے آتی ہے وہ مضحکہ خیز ہے۔ میرے حلقے کے 436 میں سے 300 پولنگ سٹیشن ایسے ہیں جہاں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی
दोनों में जो इलेक्शन का टर्न आउट है, यानी कि किस तादाद से वोटर बाहर निकले, क्या तनासुब है, क्या फीसद है, वो तकरीबन 40% है, कहीं 38 है, कहीं 40 है। तो ये तो हाल है 300 पोलिंग स्टेशंस का हल्का NA 128 में। लेकिन 130 के करीब पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां कौमी असेंबली में जो टर्न आउट है वो 90% के लगभग है, जबकि उन्हीं पोलिंग स्टेशन पे सूबाई असेंबली का टर्न आउट 40% ही है। ये एक मज़ाक़ खेज सूरत हाल हमारे सामने आई और बिल्कुल वाज़ेह था कि उस दिन इलेक्शन के रिजल्ट के साथ क्या किया गया। उन 130 पोलिंग स्टेशन पे जो रिजल्ट में ये तफावत आया कि कौमी असेंबली में 90% लोगों ने जाके वोट डाल दिया, जबकि उन्हीं पोलिंग स्टेशन पे सूबाई असेंबली के लिए जो वोट पड़ा वो 40% है। ये तमाम मामला लेकर हम इलेक्शन कमीशन के पास गए। अगले दिन अपने तमाम फॉर्म 45 जो हर पोलिंग स्टेशन का नतीजा है जो हमें मिला था, वो हमने 11 फरवरी को इलेक्शन कमीशन में फाइल कर दिया। उनके रिकॉर्ड का वो हिस्सा बन गया हमारी जो पिटिशन थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मजाक उड़ाया हमारा। इलेक्शन कमीशन ने जो रवैया अपनाया वो एक मेरी नजर में इंतहाई अफसोसनाक रवैया है, और हमें एहसास हो गया कि यहाँ कोई इरादा नहीं है सुनवाई देने का, मामलात को देखने का। हम फिर हाई कोर्टों में गए और हम जो कर सकते थे हमने वो किया। इसी दौरान जो मुद्दत थी इलेक्शन पिटिशन फाइल करने की वो गुजर रही थी, लिहाजा हमने इलेक्शन अपील फाइल की इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत। जब हमने इलेक्शन लड़ा तो कानून ये था कि इलेक्शन अपीलें हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जज सुनेंगे, लेकिन जो असेंबली इस तमाम अमल के नतीजे में बनाई गई, उस असेंबली ने आते ही कानून पास किया कि इलेक्शन की अपीलें हाई कोर्ट के जजों के अलावा रिटायर्ड जज जिनको इलेक्शन कमीशन मुकर्रर करे वो भी सुन सकते हैं। लिहाजा मेरा मुकदमा बिलाखिर एक ऐसे रिटायर्ड जज के हवाले कर दिया गया जो कभी जज थे ही नहीं, जो PCO के तहत सन 2008 में चंद माह के लिए जज बने थे, जब मुशर्रफ ने एक गैर कानूनी इमरजेंसी का मुल्क में निफाज किया था और एक मसनूई चीफ जस्टिस को चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुकर्रर किया था। इस तमाम अमल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रद्द किया। 2009 का तारीख साज फैसला है जिसमें इन तमाम जज साहिबान को के बारे में यह कहा गया कि ये कभी जज थे ही नहीं, इनकी तैनाती जो है वो एक बेमानी अमल था। इस किस्म के एक जज को मुंतखब करके लाहौर शहर के बहुत से हल्के, मेरा हल्का, यास्मीन राशिद साहिबा का हल्का, जहां उन्होंने इलेक्शन नवाज शरीफ के खिलाफ लड़ा था, ये मुकदमा इन PCO जज साहब को दे दिए गए। इनके खिलाफ हमने हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल की। मेरी पिटिशन कई माह से हाई कोर्ट में है, उसको फिक्स नहीं किया जा रहा। जिन 2 जज साहिबान के पास आई उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि हमें बड़ा बेंच चाहिए, हम अकेले इस पिटिशन का बोझ नहीं उठा सकते। मैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास खुद गया, मैंने इस्तदा की कि इस मुकदमे को लगाया जाए। जो कहा है हाई कोर्ट के सिंगल जज साहिबान ने कि बड़ा बेंच बनाया जाए, वो बेंच बना दिया जाए। मेरी ये गुजारिश किए हुए भी कई माह गुजर गए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने यह कहा कि हमारे पास तो जज ही नहीं है कि आपका मुकदमा सुन सके। तो तमाम दरवाजे हमारे ऊपर कानूनी जो हैं वो बंद कर दिए गए। अब रह रह के मैं सोचता हूं उन बच्चों का, उन बच्चियों का। मुझे आज भी वो बच्ची याद है जो लाहौर के मॉडल टाउन APS के पोलिंग स्टेशन पे मुझे मिली। उनकी वालदा साथ थी। उस बच्ची ने कहा, अंकल ये मेरी जिंदगी का पहला वोट है, ये मैं आपको दे रही हूं, इमरान खान को दे रही हूं, आपने इस वोट की हिफाजत करनी है। उस वोट की हिफाजत के लिए हम आज भी खड़े हुए हैं, हम सरगर्दा हैं, हम कानून का दरवाजा आज भी खटखटा रहे हैं। हम आज भी पाकिस्तान की आवाम को कह रहे हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत को हमने कायम करना है। जो हुआ पिछले साल हमने उसको नहीं होने देना, हम उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। अगर हमने इस बात को मान लिया, जो तमाम अमल पिछले साल हुआ उस अमल को अगर हमने अपना लिया, तो इस मुल्क में तारीकी ही तारीकी होगी। सिर्फ झूठ होगा, सिर्फ फरेब होगा, सिर्फ धौंस होगी। पिछले साल 8 फरवरी 9 फरवरी के झूठ को दबाने के लिए जो फस्तायत बर्पा की गई है, हम सब ने उसको देखा। मैं गुमान नहीं कर सकता था कि ये मुल्क ये बन जाएगा जो आज ये मुल्क बन चुका है। लेकिन हम खड़े हुए हैं, हम हक के साथ खड़े हैं, सच के साथ खड़े हैं, हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं, अपने आइन के साथ खड़े हैं। हम मुकदमात भी लड़ रहे हैं, हम अपनी आवाज भी बुलंद कर रहे हैं। इस तमाम कोशिश के सिले में मेरे खिलाफ आज 18 फौजदारी मुकदमे कायम हैं। हर रोज मैं बेल कराता हूं। आज भी अभी मैं बेल कराकर अदालत से आ रहा हूं। मुझे यह कहा गया है कि मैं दहशतगर्द हूं,
मैं आगे लगाता हूं, मैं कत्ल करवाता हूं। तमाम इल्जामात जो किसी इंसान पर लग सकते हैं वो मुझ पर लग चुके हैं, लेकिन मैं खड़ा हूं और मैं खड़ा रहूंगा। जेल मुझे नहीं डराएगी, कोई तकलीफ मुझे नहीं डराएगी। मैं हक बात करूंगा, मैं सच्चाई की बात करूंगा, क्योंकि मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, मुझे पाकिस्तान के अवाम से मोहब्बत है, मैं पाकिस्तान की फलाह चाहता हूं। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ अता किया है। अपने पेशे से मैंने जो कुछ हासिल किया वो लोग गुमान भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। जो मुझे इज्जत आपने दी, पाकिस्तान ने दी, पाकिस्तानियों ने दी, वो उस इज्जत से ज्यादा है जिसका मैं मुस्तहिक हूं। इसलिए मुझ पर यह फर्ज है कि जो नेमतें मुझ पर नाजिल फरमाई हैं अल्लाह ताला ने, जो आसाइशें मुझे मिली हैं, जो कामयाबियां जिंदगी में मुझे मिली हैं, उनका मुझ पे अब हक है, मुझ पर फर्ज है कि मैं लड़ूं, मैं आवाज बुलंद करूं। मैं अपनी आसाइश वाली जिंदगी की जानिब अब कभी नहीं लौट सकता, क्योंकि मैंने देख लिया है कि इस मुल्क में जबर क्या है, जुल्म क्या है। इस तमाम अरसे में जब से मैं सियासत में शामिल हूं, और ये एक हसीन तरीन तजुर्बा है मेरी जिंदगी का, मैंने ये देखा कि इस मुल्क में जुल्म है, मैंने ये देखा इस मुल्क में झूठ है, इस मुल्क में अवाम की आवाज को कुछ नहीं समझा जाता। घर, चादर, चार दीवारी का कोई तकद्दुस नहीं है। मुझ पे फर्ज है कि मैं लड़ूं और मैं लड़ता रहूंगा, आखिरी दम तक मैं लड़ता रहूंगा। मैं खड़ा हूं, आपके साथ खड़ा हूं, आप मेरे साथ खड़े रहिए। हमने पाकिस्तान को फलाह की जानिब लेकर जाना है, सच्चाई की जानिब लेकर जाना है। इस झूठ और कुफर के निजाम को हमने खत्म करना है। ये वो निजाम है जो आपकी आवाज को दबाता है, जो उनको नवाजता है जो जबर के साथ खड़े हैं, उनको नवाजता है जो आपका नवाला छीनते हैं। आज अगर आपके पास सेहत नहीं है, आज अगर आपके पास तालीम नहीं है, तो इसकी वजह सिर्फ यही है कि पाकिस्तान में कभी जमहूरियत को पनपने नहीं दिया गया। हर दफा जमहूरियत पर, आपकी आवाज पर डाका डाला गया। अब हम मजीद ऐसा नहीं होने देंगे। हम आवाज बुलंद करते रहेंगे, पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के बाहर भी। हमारे बुनियादी हुकूक तमाम इंसानियत का विरसा है। किसी भी मुल्क में जब लोगों पर जबर डाला जाए, कहर नाजिल किया जाए, उनके हुकूक छीने जाएं, तो ये तमाम इंसानियत का मामला बन जाता है। आप जहां कहीं भी हैं, आप पाकिस्तान के लिए अगर दर्द रखते हैं, पाकिस्तान की आवाम के लिए अगर दर्द रखते हैं, तो अपनी आवाज बुलंद कीजिए, हमारी आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाइए। बहुत शुक्रिया।